So in this sum, pay attention. In this sum, we have angle A as 40 degrees, and first thing we have to find is angle PQR. Sorry, POR. O is the center of the circle. We have to find POR. Okay. Now, what about this OP? What is this OP? It is the radius, and this is the tangent. So radius is perpendicular to the tangent. Correct. Similarly, OR is also the radius, and this is the tangent. So OR is also perpendicular. Okay, see, OP is perpendicular to AB and OR is perpendicular to AC. Reason for both will be radius perpendicular to tangent. ठीक है? So ये 90, 90 and 40. I can get this angle easily. Okay, so in quadrilateral OPAR, 90 plus 90 plus 40 plus angle POR equals 360. So I will get angle POR as 140 after calculation. और POR और PQR में क्या रिलेशन है? POR and PQR. What is the relation? Angle at center is twice angle at circumference. Correct. So they have given you the value of POR is 140. So easily you can find angle PQR, you will get as 70 degrees. That's it. It was a simple sum. Copy it fast. Chalo, next sum. Question number 24. Now 24 is a show that sum. So as I have always said, the probability of these sums coming in exam is less, but still it's an easy sum, so that is why I'm doing it. Completely हम proof sums को ignore नहीं करेंगे. मैंने बहुत सारे proof sums पहले भी करवाए हैं और अभी भी आगे करवा रहा हूँ मैं. कुछ जो बहुत ही ज्यादा complex है या unwanted है, उनको मैं ignore कर रहा हूँ. बाकी हम करेंगे. ठीक है? तो अभी next 24th sum easy है comparatively, so we will do it. Question number 24. So see, now in this sum, diagram draw नहीं करना है. अब यहाँ पे you must always read the question. You should not rely on the diagram given in the question paper or textbook. अब यहाँ पे आपको diagram देख के लग रहा है कि M midpoint है PR का. मेरा डायग्राम तो ठीक नहीं है, आप टेक्स्ट बुक का डायग्राम भी देख लो तो भी नहीं लगेगा आपको, लेकिन क्वेश्चन में दिया है M is the midpoint, है ना. इसीलिए हमें क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है. ओके, सो दे हैव सेड दैट PQR इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस मतलब PQ equals PR. ओके,
PQ PQ equals PR, ठीक है, because it is isosceles triangle, ठीक है. Now we had studied a few properties, if you remember, like tangent and chord properties. Tangent and chord when they meet externally, याद है? When the tangent and chord meet externally, क्या property होती थी? PT square is equals to PA into PB. ये P है, PA into PB, याद है? एक ये पढ़ा था, फिर एक ये वाला पढ़ा था प्रॉपर्टी ऐसे, है ना? ये क्या था? PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PC इंटू PD. और तीसरा ये प्रॉपर्टी पढ़ा था कि मीट इंटरनली. ये भी सेम ही था, बीच में P, दिस इज AB एंड दिस इज CD. सो PA इंटू PB इक्वल्स PC इंटू PD. ये तीन प्रॉपर्टी याद रखना. तो इसमें से अब हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, द फर्स्ट वन, दैट इज PT इज PA इंटू PB. अब ये वाला यहाँ पे कैसे यूज होगा, ध्यान देना. Here, if you observe carefully, this PM is a tangent and QS is a chord which extends and meet P externally. ठीक है, तो यहाँ पे I can write that PM square equals PS into PQ. What about MR? नहीं होगा ना यहाँ पे. This is tangent. ये इसका यूज ही नहीं है, ठीक है ना. अगर ये ऐसा होता, मतलब अगर ये इस तरह से होता, तो ये भी पार्ट भी आता और ये पार्ट भी आता, ठीक है. एक टेंजेंट है ना. तो ये आया. अब मुझे प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में? PQ equals 4 into PR. Correct. Means I want PQ PS. Okay. So I want PQ and I want PS. ठीक है. तो मुझे PM नहीं चाहिए, तो इस PM को मुझे हटाना है. ओके. अब क्वेश्चन में दिया है that M is the midpoint. M is the midpoint. So I can write PM as PR upon 2. क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा? PM क्या है? PR का हाफ है ना. तो मैंने ये लिख दिया इक्वल्स PS इंटू PQ. अब मुझे PR चाहिए क्या? प्रूफ में PR भी नहीं चाहिए, बट PR और PQ सेम है, सेम है ना. तो यहाँ पे आएगा PQ अपॉन 2. बस हो गया. दो चीजें करनी थी. अब ये क्या बन जाएगा? PQ स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स PS इंटू PQ. एक PQ कैंसिल हो जाएगा, PQ इक्वल्स 4 इंटू PS. हेंस प्रूव्ड. समझ रहे हैं? दो स्टेप इंपॉर्टेंट था. एक ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना, यहाँ पे लिखना होगा आपको टेंजेंट एंड कॉर्ड मीट एक्सटर्नली.
नेक्स्ट सम करें। इस प्रॉपर्टी को है ना आप, ये जो मैंने लिखा है ना, टेंजेंट एंड कॉर्ड मीट एक्सटर्नली, इसे आप ऐसे लिखोगे तो भी सही है। टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड। रीजन को, टेंजेंट स्क्वायर इज प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड। एक्चुअली वो स्कूल पे डिपेंड करता है, आप देखो स्कूल में आपको क्या रीजन लिखवा रहे हैं। टेंजेंट स्क्वायर इक्वल्स हो जाता है, बट फिर भी स्कूल में एक बार देख लो, हो जाता है वैसे, क्योंकि दूसरे बुक में वही है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड। हो गया, नेक्स्ट करूं। ट्वेंटी फाइव। अच्छा, व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस क्वेश्चन? कुछ एक्स्ट्रा ऐसा चीज दिया है, पैरेलल लाइंस। ये चीज आपको बहुत ही जल्दी नोटिस होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस, बिकॉज अगर पैरेलल लाइंस दिया है तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज होगी। तो क्या प्रॉपर्टी यूज हो सकती है यहाँ पे? ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, आंसर कब जब मिलेगा तब देखेंगे, लेकिन ये यूज जरूर होगा प्रॉपर्टीज। ओके, तो आपको इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, अभी मुझे फाइंड क्या करना है? आई हैव टू फाइंड ए सी बी। ठीक है, ए सी बी मतलब ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। जैसे ये 40 दिया है, अब इसको कैसे यूज करें? तो डू वी नो एनीथिंग अबाउट दिस ट्राइंगल? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये टी से दो टेंजेंट बन रहे हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो these two tangents are equal. If these two tangents are equal, these two angles will be equal. So you can find the value of these angles. दोनों को x x लेके, है ना, फाइंड करो। क्या मिल रहा है? जो इक्वल एंगल्स है वो क्या मिल रहे हैं? So this angle is 70 and this is also 70. ठीक है, आया सबको? ये क्रिश बताओ मुझे, ऑल्टरनेट, ये टेंजेंट है ना, और ये क्या है? बीसी क्या है? बीसी टेंजेंट है, टीसी टेंजेंट है, यस। ये बीटी क्या है? टेंजेंट है, और बीसी कॉर्ड है। तो ये एंगल कितना दिया हुआ है? 70। तो ये एंगल किससे सेम होगा? बीसीए, ये वाले से। कैसे? नहीं, जेड नहीं बनाना हमें। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बताओ मुझे, बताओ मुझे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। पता है क्या होता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम? चैप्टर खत्म होने वाला है आज। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कैसे करते हैं हम?
जो टेंजेंट है और जो कॉर्ड है उनके बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. सो ये जो कॉर्ड है BC, इसने सर्कल के ऊपर कौन सा एंगल बनाया ये? सो दीज टू एंगल्स आर सेम, है कि नहीं? So I will write here that angle TBC is equal to angle BAC. Alternate segment theorem. ठीक है, तो ये भी मिल गया 70. अच्छा, what he said is, उसने क्या बोला कि इसको हम Z बना देते हैं. यहाँ पे Z बनेगा क्या? मतलब ये और ये Z बनेगा? ये और ये Z कब होता? जब ये दोनों लाइंस पैरेलल दी होती है. ऐसा ये Z नहीं है ना, ये लाइंस पैरेलल नहीं दी है. पैरेलल कौन सी है? AB और CT. तो उनके बीच में Z बनेगा. ठीक है, तो उनके बीच में Z बनेगा तो कौन से एंगल सेम हो जाएंगे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा Z की वजह से, है ना? तो हम ये भी लिखेंगे यहाँ पे that AB is parallel to CT, therefore angle ABC is equal to angle BCT. तो ABC क्या मिल जाएगा? 70. अब आपको ACB मिल जाएगा. ये 70 मिला, ये 70 मिला, तो ACB मिल जाएगा. फाइंड करो. What is ACB value? ACB is how much? 40. Next sum. Now, any ideas what we will do in this sum? Join BD. Very good. ये ज्वाइन करना बहुत जरूरी है. क्यों ये ज्वाइन करना जरूरी है? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है, तो इनके बीच में ये एंगल बन रहा है.
अब ये एंगल सेम किससे होता है? जो एंगल कॉर्ड सर्कल पे बनाता है, कॉर्ड मतलब BC, तो BC सर्कल पे जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऐसे होगा कुछ, तो उसके लिए B और D को ज्वाइन करना जरूरी है, तो ये हम यूज कर पाएंगे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, है ना? तो आई विल राइट हियर ज्वाइन BD। तो इसको अब सी BD को जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसे O से पास मत करना, बिकॉज वी डोंट नो वेदर BD इज अ डायमीटर और नॉट, हमें पता नहीं है, हम तो रैंडमली ज्वाइन कर रहे हैं खाली, ठीक है? जब तक स्पेसिफाई नहीं किया है हम उसे O से पास नहीं कर सकते, ठीक है? तो आई विल राइट हियर एंगल BCT इज इक्वल टू एंगल BDC एंड एंगल ठीक है। अब यहाँ पे भी हो सकता है क्या, ये कॉर्ड और इस टेंजेंट में अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये किससे सेम होगा? यस पृथ्वीराज, ये किससे सेम होगा? AD, ओके, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल मेड बाय AB ऑन द सर्कल, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है? सो एंगल BAT विल बी इक्वल टू एंगल ADB, अगेन रीजन विल बी सेम। सो अब इसके थ्रू मुझे क्या पता चल गया कि ये एंगल 20 है और ये एंगल 35 है, तो मुझे पूरा ADC भी मिल जाएगा, मतलब, है ना? ADC पूछा है ना उन्होंने, सो ADC विल बी हाउ मच? 20 प्लस 35 दैट इज 55। फर्स्ट मिल गया मुझे, फर्स्ट आंसर मिल गया। मिला कि नहीं मिस्टर युग? राइट किया मैंने, ये एंगल मिला ना आपको? तो नेक्स्ट क्या पूछा है? AOC, तो AOC कुछ दिख रहा है रिलेशन? वेरी गुड, ये एंगल एट सेंटर है, ये एंगल एट सर्कम्फरेंस है, तो सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे। देखो वो लोग सीक्वेंस में क्वेश्चन भी पूछते हैं, उनको पता है कि ADC रिलेटेड है AOC से, तो इसलिए नेक्स्ट AOC पूछा उन्होंने, ओके? किसको? यस, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा AOC को। कितना मिला AOC? 110। फिर क्या पूछा है? ABC बहुत आसान है, ABC इजीली मिलेगा हमें। मैंने बना दिया है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अच्छा, नेक्स्ट क्या पूछा है? ATC, मतलब ये वाला एंगल ATC, ठीक है? हमेशा याद रखो ये कौन सा एंगल है? ये वो एंगल है जिसे हम कह सकते हैं कि मतलब जो टेंजेंट्स एक्सटर्नली मीट हो रही है, ये वो वाला एंगल है। टेंजेंट्स एक्सटर्नली मीट हो रही है ना यहाँ पे, ये वो एंगल है। ये एंगल हमेशा एक ही तरीके से ढूंढते हैं, क्या तरीके से? रेडियस से क्वाड्रिलैटरल को कंप्लीट करो, फिक्स है ये हर सम में। ये जो एंगल होता है ये अगर ढूंढने का पूछेगा वो लोग, ठीक है?
या ये वाला एंगल ढूंढना पूछा, ये भी काम आता है कभी कभी। तो ये हमेशा इसी तरीके से ढूंढते हैं। कैसे? ये रेडियस है तो ये 90 बनाएगा टेंजेंट के साथ, ये भी रेडियस है तो 90 बनाएगा, ठीक है। और एओसी आपको ऑलरेडी पता है, तो आप ढूंढ सकते हो टोटल 360 करके। रिफ्लेक्स एंगल सिर्फ सेंट्रल एंगल का होता है, रिफ्लेक्स सिर्फ सेंट्रल एंगल का होता है, वो लकीली आ गया होगा इनको इंसिडेंस। आप समझ नहीं रहे हो। हाँ, एओसी का रिफ्लेक्स करोगे तो एबीसी मिलेगा। नहीं वैसे नहीं, वैसे नहीं, एओसी है ना जो मिला ना, उसका 360 में से माइनस किया तो रिफ्लेक्स एओसी मिला, उसका समझा। फिर सिर्फ आप ही, अरे सॉरी, अरे तू से ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। ये आपको मिला हुआ है 110, तो इन तीनों के हेल्प से ये मिल जाएगा, ठीक है। ये याद रखो, मतलब क्योंकि ये वैसे ही हमेशा ऐसे ही ढूंढना होता है इसको, ये जो बाहर वाला एंगल होता है इसको हमेशा इसी तरह से ढूंढना होता है, ओके। हाँ, टैंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस से ही ये ढूंढते हैं हमेशा। एक सेकंड, एटीसी क्या मिल जाएगा? 70 मिल रहा है।
ठीक है, इजी समय ये काफी. दिस एंगल इज 50 डिग्रीज. ये जो एंगल दिया है ये आपको देख के पता चल रहा है कि ये एंगल टेंजेंट और कॉर्ड ने बनाया है. अगर ये एंगल टेंजेंट और कॉर्ड ने बनाया है तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होगा यहाँ पे. ठीक है, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल आरपीएस या एंगल ए, है कि नहीं. आर एस कॉर्ड ने ये एंगल बनाया सर्कल के ऊपर. ठीक है, सो दिस एंगल will be equal to this angle, alternate segment theorem. ठीक है, अब विनीत बताओ एंगल बी कैसे ढूंढेंगे. वेरी गुड, ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है पी क्यू आर एस. ठीक है, पी क्यू आर एस साइक्लिक है. सो एंगल क्यू प्लस एंगल एस इक्वल्स 180 डिग्रीज. सो 80 प्लस बी इज 180. सो बी इज 100. बस ये दोनों मिल गया. अब इन दोनों के हेल्प से आप सी भी ढूंढ सकते हो. खत्म करो सम. Pay attention, question number 28. We have to find first angle ADC
ADC मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। ADC मतलब ये, अब ये एंगल आपको ऑलरेडी पता है, ये सीधा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन जाएगा, ठीक है, कर लो। ADS, ADS मतलब ये वाला एंगल, अब ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बनता है। यस ताशु टेल, ये कौन से एंगल के साथ ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हो रहा है? शाबाश। सो एंगल जो कॉर्ड AD है, दैट कॉर्ड AD is making the angle 50 with the on the circumference. So हम लिखेंगे angle ADS is equal to angle ABD alternate segment theorem. अरे हाँ सॉरी, ये गलत हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है ना, प्लस 180 आएगा, इक्वल कर लिया, इक्वल। वन 105 95 है। अब CDT भी आपको सेम तरीके से मिलेगा। CDT ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, तो इनके बीच में ये एंगल है। नाउ कॉर्ड CD ने क्या एंगल बनाया सर्कल के ऊपर? जो कॉर्ड CD है, इट इज मेकिंग दिस एंगल ऑन द सर्कल। कुछ है लास्ट, ADO, ADO कैसे ढूंढेंगे? ज्वाइन करेंगे OD और ADO, ADO, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। ये कैसे ढूंढ सकते हैं? इतना मेहनत क्यों करना है? नहीं, मैं उसके बिना भी कर सकता हूँ। और किसी ने कैसे फाइंड किया ADO? ठीक है, वो तो ठीक है। वेरी गुड,
ये देखो ODS 90 होगा, ये आपको पता हुआ है 50, तो ये सीधा 40। ये आना चाहिए था दिमाग में। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये 90 है। OD is perpendicular to ST, radius perpendicular to tangent. Done? Next. Question number 29. क्या? हाँ, see, what do we have to find here? First EDA. तो EDA मतलब ये वाला एंगल कैसे ढूंढेंगे? ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट बने और टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल. ओके, सो ED is equal to EA. Tangents from external point. ठीक है, so x these angles will be equal. Angle EDA will be equal to angle EAD. Next, they are asking me DBA. ये मुझे 70 मिला है. तो ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है. तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल किससे सेम होता है? द एंगल मेड बाय द कॉर्ड ऑन द सर्कल
तो ये एंगल सेम होंगे जो मैंने मार्क किए, सही है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल EDA इज इक्वल टू एंगल DBA, ठीक है। Therefore angle DBA is 70. ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट, इनके बीच में ये एंगल है। दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल मेड बाय द कॉर्ड ऑन द सर्कल। कॉर्ड AD है ना, तो सर्कल पे एंगल बना है AB। फिर क्या पूछा है नेक्स्ट? BCD। कैसे ढूंढेंगे BCD? पहले तो लीनियर पेयर से ये एंगल ढूंढेंगे, लीनियर पेयर से ढूंढ लेंगे ना, ये पूरा 180 होगा, है ना, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 हुआ पूरा। So 70 plus 60 plus angle BDC equals 180 linear. So angle BDC will be 50 degrees. इसको बॉक्स नहीं करेंगे, ये 50 है। फिर अभी क्या करेंगे? तो ये दोनों टेंजेंट्स है वापस, CD और CB, ये टेंजेंट्स है। अगर ये टेंजेंट्स है तो ये दोनों इक्वल है, और अगर ये इक्वल है तो ये एंगल भी 50 हो गया। समझ रहे हैं? इक्वल है ना दोनों, तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो एक 50 मिला, दूसरा भी 50, 50 से आपको BCD मिल जाएगा। क्या मिल रहा है फाइनल एंगल BCD? 80 डिग्री। Question number 31, 32, 33, 34, 36 are based on similarity. ठीक है? Similarity was there in the first term. So आप स्कूल में कंफर्म कर लो कि ये आएगा या नहीं आएगा। मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, तो आप कंफर्म कर लेना। अगर पॉसिबल कुछ रिप्लाई मिले, नहीं मिले तो हम देखते क्या करना है, ठीक है, सिमिलैरिटी के बेसिस पे। तो वैसे नहीं आना चाहिए बिकॉज सिमिलैरिटी फर्स्ट टर्म में हो चुकी है, तो आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बाकी सम्स अभी के लिए वो सम्स को आप कैंसिल मत करो, कुछ और कर दो। बाकी सम्स हम कंप्लीट करते हैं। वैसे नहीं आएगा बिकॉज सिमिलैरिटी हो गया है, तो वो नहीं पूछेंगे आप। Next, question number 30. Question number 30 next.
we'll start the sum with alternate segment theorem. Tangent chord. The angle between the tangent and chord is equal to the angle made by the chord on the circle. तो ये वाला एंगल AC ने ये एंगल बनाया है ना सर्कल पे, एंगल B बनाया है AC ने, तो हम लिखेंगे एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC. ABC मत लिखो, सिर्फ B लिखो. रीजन विल बी alternate segment theorem. So therefore angle B is 48 degrees. एक हो गया मेरा सेकंड. अब AB इज डायमीटर. AB डायमीटर है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है. AB डायमीटर है और डायमीटर मेक्स 90 डिग्रीज. तो एंगल ACB जो होगा, ये वाला एंगल ACB, दिस विल बी 90. एंगल B मिला है 48, ACB मिला है 90. तो थर्ड एंगल यू कैन फाइंड इजीली, एंगल A. 42. Question number 30 done. 25. See, I'll explain again. सर AOC भी 48 हो सकता है ना, ऑल्टरनेट AOC सेगमेंट. 48 क्यों होगा? सर AOC बना रहा है ना एंगल AOC पे, तो AOC सेंटर में बन रहा है ना, सेंटर में बन रहा है AOC. और ABC जो है वो सर्कमफरेंस पे बन रहा है. तो ये और ये ट्वाइस हो सकते हैं, ट्वाइस. इक्वल कब होता है? जब दोनों सर्कमफरेंस पे बने, तब इक्वल होता है.
यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि दिस एंगल इज एट सर्कमफरेंस एंड दिस एंगल इज एट सेंटर। इसने सेंटर में बनाया है और ये सर्कमफरेंस पे बनाया है, सो दैट इज व्हाई दे आर ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। They have given us the radius of the smaller circle and radius of the bigger circle. Okay. See, now we will first use the radius here. Radius use करना बहुत जरूरी है. So what I'll do is join. This is the center OT and OB को join करो. OT and OB. Joined OT and OB. Now OT is nothing but the radius of smaller circle. OT smaller circle का radius है ना, तो ये 9 होगा, है कि नहीं? OT smaller circle का radius और OB क्या है? बड़े सर्कल का radius, तो वो 15 होगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, और OT will be perpendicular to AB. Why? Radius is perpendicular to tangent, है ना? ये tangent है AB और ये radius है, तो ये perpendicular होगा। तो अब पाइथागोरस से मुझे TB मिल जाएगा। So using Pythagoras theorem, OT square plus TB square equals OB square. तो इसकी वैल्यू ढूंढ लो यहाँ पे। कभी चार्ज कितना हो? ठीक है, तो BT क्या मिला? 12 मिला। 225 माइनस 81, 144 रूट 12। ओके, ठीक है, तो अब ये 12 मिल गया। अब मुझे ढूंढना क्या है? BC। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? 18 BD। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बनता है यहाँ पे? BT और BCD, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है सर्कल की। BT टेंजेंट है, CD कॉर्ड है जो एक्सटर्नली मीट हो रहा है पॉइंट B पे, है कि नहीं? नहीं, ये ऐसा है, ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है ऐसा। तो हमने पढ़ा है कि BT स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC इंटू BD, है ना? BT स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC इंटू BD। BT स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC इंटू BD। स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हो आप यहाँ पे, फ्रैंक में ऐसा स्टेटमेंट दिया है, टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट्स।
तो BT we have got it as 12, BC हमें नहीं पता और BD क्वेश्चन में दिया था 18. ओके, तो BC क्या मिलेगा आप ढूंढ लो. दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, कंप्लीट फास्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. इजी सम है वैसे. You can even do it on your, try it on your own. So there is one tangent, दो tangents है from external point. ठीक है, हमें पता है कि tangents equal होते हैं. हमें पता है tangents equal